حاضرین، سب سے پہلے تو میں اس جلسے کے آرگنائزرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کا یہ اجتماع منعقد کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تلنگانہ کا ہر مسلمان آج اس تحریک سے وابستہ ہے اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کے لیے وہ فکر مند ہے۔ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 70-80 برس پہلے آزادی ہند سے پہلے انہوں نے یہ مسلمانوں کو بیان دیا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن اس شعر کو میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا آج کے حالات کے مد نظر کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے تلنگانہ کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اسی لیے ہم کو اس تحریک میں شریک ہونا ہے، کیونکہ قیام آندھرا پردیش کے بعد اگر مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی پھر سے ہو سکتی ہے تو وہ تلنگانہ ہی میں قائم ہو سکتی ہے۔ یہ نعرہ بازی، یہ بھاشن تلنگانہ کو اس لیے نہیں لا سکتا کہ ہم دانشور رہ کر بھی آج ایک میز پر بیٹھ کر تلنگانہ کی تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس لیڈرشپ کس طرف جا رہی ہے، تلگو دیشم لیڈرشپ کس طرف جا رہی ہے، اور آئندہ انتخابات میں اس بات کا پتہ چلے گا کہ واقعی عوام کیا چاہتی ہے۔ ابھی آپ بائی الیکشن میں دیکھ چکے ہیں کہ پوچارام سرینواس ریڈی نے تلگو دیشم سے استعفیٰ دے کر TRS میں شریک ہوئے اور انہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ بانسواڑہ کے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اور یہی حال بلکہ اس سے بدتر حال اگر آج الیکشن کرائے جائیں تو تلنگانہ میں آپ کے سامنے آئیں گے، اور تلنگانہ کے عوام اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آج تلنگانہ تحریک سیاسی لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ سیاسی لیڈرشپ سے ہٹ کر تلنگانہ تحریک آج اسٹوڈنٹس میں، بھگلا میں، نوجوانوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین میں ان کے اتحاد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم آج تلنگانہ کے لیے اگر جدوجہد کرتے ہیں تو ہم کو سیاسی لیڈروں کے دھوکے میں آ کر ہم کو اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے تمام دانشوروں کو بیٹھ کر ایک لائے عمل، ایک روڈ میپ جو دلی میں تیار کیا جانے والا ہے، اسی طرح کا روڈ میپ ہم تلنگانہ کے قیام کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ چاہوں گا کہ یہ تحریک کانگریس الگ چلا رہی ہے تلنگانہ کے لیے، تلگو دیشم الگ چلا رہی ہے، TRS الگ چلا رہی ہے، لیکن کوئی بھی ایک میز پر بیٹھ کے متحدہ طور پر تلنگانہ کی تائید کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگ کے اپنے اپنے مسائل ایسے ہیں جس کو ہم کو حل کرنے کے لیے ہماری قوم کے، ہماری لیڈرشپ ایسی تیار ہونا چاہیے جو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب کنڈا لکشمن بابو جی صاحب کا کہ انہوں نے 96 سال کی تکمیل کے بعد آج دلی میں بھوک ہڑتال پر تلنگانہ کے لیے بیٹھے۔ کیا ہمیں ایسے اصحاب یہاں پر موجود نہیں ہیں جو تلنگانہ کے لیے اپنی جان کی قربانی حالانکہ اسٹوڈنٹس نے دی ہے، لیکن اتنی بڑی عمر کے باوجود بھی دلی جا کر تلنگانہ کے لیے بھوک ہڑتال مرن برس بیٹھنا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے، لہذا ہم کو ان کی صدارت میں میں یہ چاہوں گا کہ
मुंडा लक्ष्मण बापू जी को बिठाकर हम तेलंगाना के तमाम लीडरशिप इस बात के लिए हम उनको तैयार करें कि वो तेलंगाना तहरीक को लीड करें, तेलंगाना तहरीक को आगे बढ़ाएं और तेलंगाना तहरीक को कामयाबी के रास्ते पर डालकर एक मिसाल कायम करें। इस उम्र में भूख हड़ताल या मरण बरत बैठना, मैं समझता हूँ कि अगर उनको कल कुछ होता है तो खुदा ना खास्ता इसकी सारी जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत, यूपीए हुकूमत, सोनिया गांधी जी और फिर इसके अलावा मनमोहन सिंह साहब के सर जाती है, जिन्होंने इसको टालते हुए इतना अरसा गुजार दिया कि गुज़िश्ता 2 साल से हम तेलंगाना के इंतज़ार में बैठे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि चूँकि मुसलमानों का ये जलसा है, मुसलमान यहाँ जमा है, लेकिन ये बात वाज़ेह होना चाहिए कि इस तहरीक में हिंदू या मुसलमान की बात नहीं होना चाहिए, बस इस तहरीक को ताकतवर से ताकतवर बनाने के लिए तेलंगाना के सभी फिरकों को आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। रही बात मुसलमानों की, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि 56 के बाद से अगर किसी को बहुत सारा नुकसान हुआ है तो वो मुसलमानों को हुआ है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी यहाँ पर बैनर्स लगाए गए हैं, लेकिन 1,70,000 करोड़ के वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ हैदराबाद में तबाह किए जा रहे हैं। और अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हैदराबाद का कोई मुसलमान भूखा नहीं रह सकता। आज आप देख रहे हैं कि आज ही के अखबार में ये इत्तला आई है कि हिंदू एंडोमेंट अब किसी मुसलमान को किराए पर अपनी मलकियत नहीं देगा, वहाँ पर उन मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन आज जो कब्जे हैं वो सियासी लीडरों के इतने बड़े बड़े कब्जे हैं वक्त प्रॉपर्टीज पर कि उनको बाहर निकालना और उसको मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों का क्या नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हैं कि मैंने श्री कृष्णा कमेटी को एक तेलुगु देशम के पॉलिट ब्यूरो की हैसियत से जो रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में मैंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुसलमानों का की वक्फ जायदादों को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों की मुलाजिमतों को कैसा ख़त्म किया गया, मुसलमानों के बागात को किस तबाही के रास्ते पर डाला गया, मुसलमानों के बड़े बड़े देवड़ियों को, बड़े बड़े मकानात को किस तरह नुकसान पहुंचा गया। तो ये सारी सब बातें हैं, इससे मुसलमानों को सबसे आगे बढ़ते सीना तान कर तेलंगाना की तारीख में आना चाहिए। और मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, अगर कोई ये कहे कि मुसलमान इस तहरीक में शामिल नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत है। मुसलमान, आप अजला का दौरा कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अजला में किस कदर मुसलमान, यहाँ पर मुसलमानों को भटकाया जा रहा है। श्री कृष्णा कमेटी में मुसलमानों के नुमाइंदों ने ये बात वाज़ेह तौर पर पेश की है कि मुसलमान तेलंगाना की ताईद में नहीं है। ये बात गलत है। इस बात को झूठ साबित करने के लिए हमको मुत्तहिदा तौर पर तेलंगाना की ताईद में अपने आप को पेश करके तेलंगाना हासिल करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ समीउल्लाह साहब को और दीगर उनके साथियों को जिन्होंने ये एहतजाज का भरने का एहतमाम किया है। और मैं हमारे भाई गदर साहब जो इस तहरीक में बहुत शुरू ही से शामिल है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक ऐसी कमेटी बनाए जिसमें वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को भी अच्छी नुमाइंदगी दी जाए और हम सब बैठकर तेलंगाना को किस तरह किस रोड मैप के तहत तेलंगाना हासिल करना है उस रोड मैप की हम तैयारी करेंगे। इस रोड मैप की बेहद ज़रूरत है, वरना ऐसे धरने ऐसे जलसे करने के लिए हुकूमत के पास ऐसी पुलिस है जो तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती है, वो तो अलग है, लेकिन आज जो कंट्रोल किया जा रहा है वो आंध्रा की पुलिस से कंट्रोल किया जा रहा है, जो और यूपी, बिहार और दीगर शहरों से जो IPS ऑफिसर्स यहाँ आए हैं उनकी मदद से है, तो इस तहरीक को कुचलने की कोशिश हो रही है। लिहाजा हमको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम तेलंगाना के लिए हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो पुलिस का भी डिपार्टमेंट हो, तेलंगाना की पुलिस को भी चाहिए कि वो इस तहरीक में शामिल होते हुए अपना हिस्सा अदा करे और अपनी तेलंगाना को हासिल करने की कोशिश करें। मैं आखिर में फिर एक बार
गुंडा लक्ष्मण साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि यकीनन मुझे यकीन है कि उनकी मरण परत बैठने से दिल्ली में यकीनन तेलंगाना के फेवर में कोई फैसला होने वाला है। और वरना ये भी हो सकता है कि उनकी जान को खतरा हो। उन्होंने अभी हालिया एक मीटिंग में अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपए का ट्रस्ट कायम किया और उन्होंने मुझे भी उस ट्रस्ट का मेंबर बनाया। और उन्होंने खास तौर पर ये मरण परत शुरू करने से पहले उन्होंने घर पर मुझे बुलाकर ये हिदायत दी कि जाहिद अली खान, मैं आज इतनी उम्र को पहुंचा हूं और इतनी उम्र को पहुंचने के बावजूद भी मैं मरण परत रखने के लिए तेलंगाना के लिए तैयार हूं। और ये जज्बा लेकर उन्होंने जब मेरे से बात कही तो उन्होंने कहा कि मेरे ट्रस्ट को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। आपको अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इस ट्रस्ट को और तेलंगाना तहरीक को जारी रखने के लिए आपको इसकी भरपूर तारीफ करना चाहिए। दूसरी एक अहम बात है कि मैं ये देख रहा हूँ टेलीविजन पर भी इधर भी कि लोग और खास तौर से लीडर तेलंगाना की जब नारा लगाते हैं तो क्या नारा लगता है? तेलंगाना जिंदाबाद। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर सही प्रोनाउंसिएशन से और जोर से तेलंगाना जिंदाबाद अगर कहा जाए तो यकीनन तेलंगाना कुछ ही दिनों में हम हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हुआ अभी जो यहाँ नाच हो रहा था, ये लड़की यहाँ बैठी थी, पता नहीं कहाँ चले गई वो, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने तेलंगाना के गीत को पेश किया है और जिस किसी ने भी उस गीत को लिखा है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से इस लड़की को, इसलिए कि मुस्तकबिल उसका है। मुस्तकबिल हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं, हमारा ज़माना तो ख़त्म हो गया। हमने जो नुकसान बर्दाश्त कर लिया वो बाप अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब बाप नौजवान नस्ल के लिए हम जो ये तहरीक चला रहे हैं, ये जंग जो तेलंगाना के लिए हो रही है, ये जंग हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारी नई नस्ल के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए, इस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको कामयाब बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर एक बार कि इस जलसे को आप इस जलसे के बाद एक रेजोल्यूशन के लीजिए कि किस तरह हम आपस में बैठकर एक रोड मैप तेलंगाना के लिए तैयार करें और तेलंगाना के हुसूल से कम कोई और मुतालबा हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वरना ये कि हमको ये लालूच दी जाएगी, ये लालूच दी जा सकती है हमको कि आपको 1 लाख करोड़ 10 साल के अरसे के लिए देंगे, आप तेलंगाना की तरक्की कर लेंगे। आपको मुलाजिमतों में शिक्षण के तहत आपको मुलाजिमतों में अच्छा हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन ये सब बातें गुज़िश्ता 60 साल से हम सुनते आ रहे हैं और ये बात होने वाली नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना चाहिए और तेलंगाना जी में हमारी वक़ा है। हम चाहते हैं कि तेलंगाना बन के रहेगा और हम तेलंगाना लेके रहेंगे। ये बच्ची है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूँ कि उसने जिस तरह भी इस गीत को पेश किया है वो कल तेलंगाना का गीत बन सकता है। और मैं चाहूँगा कि ये लड़की